Hello everyone. Today we are studying Walmart. Basically, what are the fundamental ideas? What were the strategies that made Walmart the biggest retail chain of the world and made it thrive in its initial days, the early days, which are, I guess, the most difficult for any business to establish. Just before we start, a 2 to 3 minute introduction about Walmart. One, as we all know, Walmart is the biggest chain. It's a value chain. It's basically based on volume. People come to Walmart for price deals. When they get bulk deals at a very good price, that's what Walmart plays at. It's no luxury store. Yeah. Second, the founder of Walmart. Let's talk 2 minutes about him. Sam Walton, the founder. He started the first Walmart in 1962, though his learning started in 1945 when he first took franchisee of another retail store in a small town in America. That's when his journey started and he started learning. Few things about Sam Walton. He was a learner. Any book, any publication, any interaction, he would visit competition store, and everywhere his focus was just one thing: what is the right, what is the good that they are doing. He would pick it up and implement that in his store. Second, he was very closely involved in his operations. सारे स्टोर्स में क्या हो रहा है उनको बहुत अच्छे से पता था. वो बहुत घुस के सारी चीजें देखते थे, करते थे. Third, he was frugal, बहुत कंजूस थे, and they had a money crunch for a very long time, and he belonged to a very humble background. So money had great value to him. So जब तक कोई खर्चा बहुत एसेंशियल नहीं हो कि भाई उसके बिना तो अब चल ही नहीं सकता, वो खर्च नहीं करते थे. Now with that background, let me start with the strategies. So I have basically categorized these strategies into 7 broad classifications so that it's easier to follow. I'll just go through the classifications and then we'll pick them one by one. First one, reporting. उनको अपने स्टोर्स में कितना कंट्रोल था, that we'll cover here. Second, studying competition. अपने कंपटीशन को कैसे स्टडी करते थे, कितना फोकस था उस चीज पे, वो हम यहाँ देखेंगे. थर्ड, एग्रेसिव प्रमोशन. पीपल से ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव प्रमोटर. वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करते थे. ही डिडंट बिलीव इन दैट बिकॉज पैसे लगते हैं. बट फिर भी बिना एड दिए भी कैसे मार्केट करना है, कैसे एग्रेसिवली किसी चीज को प्रमोट करना है, ये चीज का वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई करते थे, एंड दैट विल स्टडी हियर. नेक्स्ट, देयर वीकली मीटिंग्स व्हिच दे से वर द बैकबोन ऑफ वॉलमार्ट. we'll come to that. Next, customer is king. What did it really mean for Walmart? We'll come here. How did they treat their employees? We will cover that here. Then we have the location. उनका कहना ये था कि for success of any store, the location and the price you pay for the location is vital. So we'll cover here कि वो लोग इस location choose करने के लिए क्या करते थे, क्या study करते थे. Now coming to the first classification, reporting. So Sam, from the very first day, he would visit his store, and जैसे जैसे stores increase होते गए, very frequently वो planned visit भी करते थे और वो surprise visits भी करते थे. And it is said history में, if there is one founder who has visited his stores a maximum times, it is Sam Walton. उनको बहुत अच्छे से पता था स्टोर्स में कौन मैनेजर्स हैं, क्या वहाँ पे कल्चर है, क्या माहौल है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है. वो इस चीज में घुसे हुए थे. सेकेंड, वो अपने हर स्टोर की वीकली रिपोर्ट उस स्टोर के मैनेजर से मंगाते थे, जिसमें वो लोग क्या कितनी सेल हुई है, क्या क्या आइटम्स कितने बिके हैं, और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम कौन सा है, ये रिपोर्ट करते थे. अगर उनको किसी भी रिपोर्ट में ये लगता था कि some problem with this report या वो satisfied नहीं होते थे, तो वो खुद उस स्टोर में जाके प्रॉब्लम फिगर आउट करके और उस स्टोर की प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको लेते थे. Then monthly he used to prepare statements himself. This is in 1960s.
इवन बिफोर, क्योंकि जब फ्रेंचाइजी भी थी तो ही वॉज मैनेजिंग मल्टीपल स्टोर्स इवन बिफोर वॉलमार्ट स्टार्टेड. एंड इवन एट दैट टाइम कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट हर महीने जो रिपोर्ट्स स्टोर मैनेजर से आती थी उनको देख के वो हर महीने सारे स्टोर्स की क्या बैलेंस शीट बन रहा है, क्या पीएनएल, कितना प्रॉफिट, कितना खर्चा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट वो रखते थे. इनफैक्ट उनके पास अपनी एक शीट थी जिसमें वो सब मेंटेन करते थे और वो खुद अपने हाथों से लिखते थे सो दैट उनको नंबर्स याद रहे. So this was how much focus he had on reporting and keeping the control on the stores. Moving to the second one, studying competition. वो जितना टाइम अपने स्टोर में स्पेंड करते थे उतना ही टाइम अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर में स्पेंड करते थे. जब उन्होंने अपना पहला फ्रेंचाइजी भी लिया था 1945 में, उनके कंपटीटर का स्टोर आसपास एक एरिया में था. एंड आगे जाके उस स्टोर मैनेजर का इंटरव्यू हुआ एंड ही यूज्ड टू से कि वो वहां जाते थे, वो सब चीजें स्टडी करते थे, बाहर निकलते उनको जो जो प्राइसेस याद होते थे वो सारे अपने नोटपैड में लिखते थे कि इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस था. और वो जाते थे, बहुत बार वो स्टोर मैनेजर्स या वहां के स्टोर हेड से मिलते थे. कई बार लोग उनसे बात करते थे, कई बार नहीं करते थे, पर जो बात करते थे वो 1 घंटा 2 घंटा उनसे सवाल पूछते रहते थे. आप कैसे प्राइस करते हो, आप कहाँ से सप्लाई करते हो, आप कैसे डिस्प्ले करते हो, आप कैसे मार्केट करते हो, जो भी सवाल उनके दिमाग में होते थे वो उनसे पूछते रहते थे. एंड सैम वॉल्टन सेज दैट दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट हैज हेल्प्ड हिम लर्न अ लॉट. एंड नॉट जस्ट हिम, वो अपने सारे स्टोर मैनेजर्स को फोर्स करते थे कि वो भी उनके आसपास के जो भी कॉम्पिटिशन में स्टोर्स हैं वहां जाएंगे, दे विल चेक देम आउट, दे विल सी कि वहां पे क्या हो रहा है एंड व्हाट इज द राइट थिंग दैट दे आर डूइंग. एंड देन वो राइट थिंग वो अपने स्टोर्स में इंप्लीमेंट करते थे एंड दे यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट विद दैट. नेक्स्ट, कोई भी उनको बुक मिल जाए रिटेल के ऊपर कि रिटेल बिजनेस कैसे चलता है, इस इंडस्ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉट एवर, कोई भी उनको किसी लाइब्रेरी में बुक मिल जाए या फिर कोई भी जर्नल जो रिटेल पब्लिकेशंस के ऊपर हो, he would read all of them. That was another source of good learning for him. एक उनके पास एक छोटा सा पैड रहता था, येलो पैड जो फेमसली लोग कहते हैं, एंड ही वुड जस्ट कीप नोटिंग ऑल हिज लर्निंग्स देयर. वो स्टोर में जा रहे हैं, स्टोर मैनेजर से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, ही वुड कीप नोटिंग एवरीथिंग देयर सो दैट इट वाज अ रिकॉर्ड फॉर हिम कि ये इंप्लीमेंट करना है.